بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز، میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا مدت پوری ہونے پر ریٹائرمنٹ کا انتہا، کہا مسلح افواج خود کو سیاست سے دور کر چکی اور دور ہی رہنا چاہتی ہیں۔ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے گی، بہتر معیشت کے بغیر سفارتکاری نہیں ہو سکتی۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی امریکی وزیر دفاع، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور نائب وزیر خارجہ سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا عالمی شراکت داروں کی مدد سے سیلاب زدگان کی جلد بحالی ممکن ہوگی۔ پاکستان امریکہ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون جاری رکھیں گے۔ پی ٹی آئی استعفوں کی عدم منظوری کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ عدالت اسپیکر کو حکم دے کہ وہ درخواست گزاروں اور دیگر 112 ارکان کو بلائے۔ درخواست میں استدعا۔ مریم نواز پاسپورٹ واپس ملتے ہی لندن روانہ، لیگی رہنما 1 ماہ لندن میں قیام کریں گی۔ نومبر میں نواز شریف کے ہمراہ وطن واپسی کا امکان۔ مریم نواز نجی ایئر لائن کی پرواز سے براستہ دوحہ روانہ ہوئیں۔ آل شریف کی سیاست کا فیصلہ چند دن میں ہونے جا رہا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی بڑی پیش گوئی، ٹویٹر پر کہتے ہیں عنقریب انصاف وقت سے پہلے ہوتا دکھائی دے گا۔ مفتاح مفت میں مارا گیا۔ اسحاق ڈار معاشی اعداد و شمار میں ٹیمپرنگ کرنے میں ماہر ہے۔ ووٹ کو عزت دو کی چیخیں نکلیں گی۔ 15 نومبر تک سیاست آر پار ہو جائے گی۔ روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 14 پیسے سستا، 224 روپے 50 پیسے میں فروخت ہونے لگا۔ ادھر اسٹاک ایکسچینج میں 177 پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 41,527 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ نواب شاہ کے علاقے ہاشم ٹاؤن میں اچار بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ، 4 مزدور جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ گیس سلنڈر پھٹنے سے ہوا۔ کسان اتحاد اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب، 7 روز سے جاری دھرنا ختم۔ فیول ایڈجسٹمنٹ، بجلی بلوں کی ادائیگی مؤخر کرنے کے مطالبات منظور۔ وزیر اعظم آئندہ 10 روز میں کسانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک آرمی ایوی ایشن ہیلی کاپٹرز نے 4,659 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پاک بحریہ کی ٹیموں نے 15,568 محصور افراد کو بچایا۔ ملک بھر میں 147 ریلیف کیمپس، 157 امدادی اشیاء کلیکشن پوائنٹس قائم۔ بھارتی فوج کی کشمیر میں سفاکانہ کارروائیاں جاری۔ ضلع شوپیاں میں 4 کشمیری نوجوان شہید۔ بھارتی فوجیوں نے دراچ اور مولو میں محاصرے اور تلاشی کے دوران شہید کیا۔ شمالی کوریا کے تجربے کے جواب میں امریکہ اور جنوبی کوریا نے بھی میزائل داغ دیے۔ دونوں ممالک نے زمین میں فضا میں مار کرنے والے 4 میزائل بحیرہ جاپان میں داغے۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ورلڈ ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گوگل کا ڈوڈل تبدیل۔ دن منانے کا مقصد اساتذہ کی انتھک محنت کو سراہنا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مسلح افواج خود کو سیاست سے دور کر چکی اور دور ہی رہنا چاہتی ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں ظہرانے سے خطاب میں آرمی چیف نے اپنی مدت پوری ہونے پر
सबक दोष होने के अज़्म का इजहार किया। इस मौका पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती हैं। मुल्क को बीमार मईशत को बहाल करना मुआशरे के हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकेगी और मजबूत मईशत के बगैर सिफारतकारी नहीं हो सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जेम्स ऑस्टिन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें की। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे अमरीका के दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जेम्स ऑस्टिन, मशीर कौमी सलामती और नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी रोथ शर्मैन से मुलाकातें की। दौरान मुलाकात आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान के लिए ताउन पर अमरीकी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी शराकत दारों की मदद से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की जल्द बहाली मुमकिन होगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों की अदब मंजूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी और दरख्वास्त में कहा है कि अदालत स्पीकर को हुक्म दे कि वो दरख्वास्त गुजारों और दीगर 112 अरकान को बुलाए। डॉक्टर शंदाना गुलजार, फ़खर ज़मान खान, फ़रूख हबीब, एजाज शाह, जमील अहमद, मोहम्मद अकरम की जानिब से दायर दरख्वास्त में वफाकी के अलावा स्पीकर, सेक्रेटरी, कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि स्पीकर तहकीक कर ले जिन्होंने इस्तीफ़े दिए उन्होंने आर्टिकल 64 के तहत मर्जी से इस्तीफ़े दिए। कानून के मुताबिक पटिशनर्स को सुने बगैर स्पीकर इस्तीफ़ों से मुतालिक इत्मीनान नहीं कर सकता। अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, 123 अरकान के इस्तीफ़ों को एक साथ देखा भी नहीं गया, इसलिए पटिशनर के पास इस्तीफ़ों से मुतालिक लेटर मौसर नहीं रहा। उधर मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज पासपोर्ट वापस मिल जाने के बाद निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता दोहा लंदन रवाना हो गई। मरियम नवाज लंदन रवानगी के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंची और एयरपोर्ट रवानगी से कबल मरियम नवाज ने दादा दादी और वालिदा की कब्रों पर फातह खानी भी की। नून लीगी नायब सदर के हमरा उनकी ज़ाती मुलाजमा भी हैं कि मरियम नवाज तकरीबन 1 माह लंदन में क़याम करेंगी, जिसके बाद उनका अपने वालिद नवाज शरीफ के हमरा वतन वापसी आने का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आल शरीफ की सियासत का फैसला चंद दिन में लंदन की मीटिंग में होने जा रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि मरियम कहती है कि मैं शहबाज शरीफ की हुकूमत से खुश नहीं, मैं डार की जिम्मेदार हूँ, शहबाज की नहीं। अनकरीब इंसाफ वक्त से पहले होता दिखाई देगा। इसाक डार मुआशी अदाद-ओ-शुमार में टेम्परिंग करने में माहिर हैं। मिफ्ता मुफ्त में मारा गया। मरियम ने जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर नवाज शरीफ की ख्वाहिश को खबर बनाया है। खबर शामिल करेंगे नवाब शाह से। नवाब शाह में अचार बनाने वाली फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फटने से धमाका, 4 मजदूर जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। नवाब शाह के इलाके हाशिम टाउन में अचार बनाने वाली फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फटने के बाइस धमाका हुआ। धमाके के दौरान 4 मजदूर जाँ बहक हुए और कई जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंचकर नाशों को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया है। किसान इत्तेहाद और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज़ में किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। किसानों ने इस्लामाबाद में 7 रोज़ से जारी धरना ख़त्म कर दिया। किसान इत्तेहाद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली बिलों की अदायगी मौखर करने के मुतालबात मंजूर कर लिए। अमल दरामद के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वज़ारती कमेटी कायम कर दी गई, जिसके बाद किसानों ने इस्लामाबाद में 7 रोज़ से जारी धरना ख़त्म कर दिया। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज़ में किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। कोशिश है कि किसानों के मसाइल हल हों। उधर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने 4659 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जबकि पाक बहरिया की टीमों ने 15,568 महसूर अफराद को बचाया। इसी तरह पाक फ़िज़ाइया की जानिब से खैमे और फूड पैकेज तकसीम किए गए।
नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का कहना है कि पाक आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स की 627 परवाज़ों के ज़रिए 4,659 सैलाब में घिरे अफराद का इनखला किया गया। रिलीफ कैंप्स और इमदादी अशिया जमा करने के पॉइंट्स मुकम्मल फ़ाल हैं। मुल्क भर में 147 रिलीफ कैंप्स, 157 इमदादी अशिया कलेक्शन पॉइंट्स कायम हैं। उधर शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल तजुर्बे के बाद अमरीका और जनूबी कोरिया ने जवाबन दो मिसाइल फायर कर दिए। अमरीका और जनूबी कोरिया की जानिब से ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले 4 मिसाइल बहरे जापान में दागे गए। जनूबी कोरिया की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक की जानिब से अमरीकी साख्ता मुख्तसर फासले तक मार करने वाले दो ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं। जनूबी कोरिया ने अपने बयान में ये भी वाज़ेह किया है कि मिसाइल तजर्बे शुमाली कोरिया की जानिब से तवील तरीन फासले तक मार करने वाले मिसाइल तजर्बे का जवाब है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।